friends, we live in a world, and if we are honest, we live in a church these days. आजकल हम जिस दुनिया में रहते हैं, अगर हम ईमानदार रहें और जिस कलीसिया में हम हैं, यदि हम ईमानदार रहें इसके विषय में, that equates faith with the absence of questions. That if you have faith, that means you shouldn't have questions. और जैसे मैंने बोला कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके अनुसार यदि हमारे पास विश्वास है तो हमारे पास सवाल नहीं होने चाहिए. In some churches and in the world today, sometimes in some cultures, we are told explicitly. और कुछ कलीसियाओं में या कुछ संस्कृतियों में ऐसे ही बोला जाता है, just believe and have nothing to do with questions. बस विश्वास करो और सवालों से कोई मतलब नहीं रखो. Or sometimes it's about the silence about certain topics that are hushed. You shouldn't be talking about that because we have faith and we should have faith. और कुछ शीर्षक, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके विषय में हमें बिल्कुल शांत रहने के लिए बोला जाता है और कहा जाता है कि बस विश्वास करिए. And sometimes we equate being a good believer, being a good Christian. और कभी-कभी हम इस बात को मान लेते हैं कि यदि हम विश्वासी हैं या मसीही हैं, means that we have mighty certainty about certain topics or about our faith and everything about the Bible. और इसका ये मतलब निकाल लेते हैं कि जो कुछ भी हमें सब कुछ मालूम है बाइबल के विषय में. So some people, if they ask, but how or how could that be? How is this possible? We sometimes take them as unbelievers. और यदि कुछ लोग सवाल करते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि ये शायद ये अविश्वासी हैं. So especially from the culture that we come in, especially from India or some of the Eastern cultures. और खास तौर से यदि देखा जाए तो जो हम इंडिया से हैं या ईस्टर्न संस्कृति से हैं, when we are told to be certain about things or not to ask questions, और जब हमको बोला जाता है कि किसी बातों के विषय में सवाल ना करें, and we have questions as human beings, और मनुष्य होने के नाते हमारे पास सवाल होते हैं, but if there is no outlet, those questions are not encouraged. और यदि ऐसे सवालों को उत्साहन नहीं मिलता, we feel shame. तो हमको शर्मिंदा महसूस करते हैं. We feel ourselves that we are not strong enough in our faith. तो हमें ऐसा हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद हम अपने विश्वास में मजबूत नहीं हैं. We feel as though we have failed the test of being a great believer. और हमको ऐसा लगता है कि हम अपने एक विश्वासी होने के नाते हम फेल हो गए हैं. So we wonder about our worth. Are we really worthy of what we believe and whether we are really good believers or not? और हम ये सोचने लगते हैं कि क्या हम कभी ऐसे काबिल हैं कि हम अच्छे विश्वासी हो सकते हैं. And some of us then lock ourselves behind closed doors. और ऐसा इस वजह से कई लोग जो हैं अपने आप को बंद दरवाजे के भीतर रख लेते हैं. Everybody else who is not asking questions, who is certain about every issue, they are great believers, they are great Christians, whereas we are hiding ourselves in our rooms. और हम ऐसे सोच लेते हैं कि जो सवाल नहीं कर रहे हैं और जो अपने विश्वास में बहुत मजबूत हैं, हम उनसे अपनी तुलना करते हैं और अपने आप को बंद कर लेते हैं. If that resonates with you today, और यदि आप ऐसा अपने बारे में भी सोच सकते हैं, then I want to share from the Bible the story that was actually written just for you. तो मैं एक ऐसी कहानी को बाइबल से आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो शायद केवल आपके लिए ही लिखी हो. And it encourages us to bring your unlessness to the risen Lord. और उसके द्वारा हम ये सीखेंगे कि हमारा जो सवाल है कि जब तक जो हमारा सवाल है वो हम अपने जी उठे यीशु के पास ला सकते हैं. The story is about a disciple of Lord Jesus Christ. Nay, it was about his apostle that was called over the centuries Doubting Thomas.
और जो इस वचन में यूहन्ना हमको बताते हैं, प्रेरित जो हमें बताते हैं, वो एक है शक करने वाला थोमा। That word doubting Thomas actually is nowhere to be found in the scriptures. और शक करने वाला थोमा तो कभी हम पवित्र शास्त्र में पाते ही नहीं है। Last week we saw, पिछले हफ्ते हमने देखा था, on the day of resurrection, पुनरुत्थान के दिन Jesus met and changed the life of Mary Magdala. और प्रभु यीशु मसीह ने मुलाकात करके मरियम मगदलिनी का जीवन परिवर्तित कर She दिया was sent to be an apostle to the apostles. और उसको भेजा गया कि वो प्रेरितों की प्रेरित हो जाए। But the same evening of the day of resurrection, परंतु उसी शाम जिस दिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ था, Jesus himself came to his disciples who were hiding behind locked doors. प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के दिन की शाम के वक्त ही अपने शिष्यों के पास पहुंचे जबकि वो डरे हुए थे और अपने आप को एक कमरे में बंद किए हुए थे। There was one disciple, however, who was missing from the crowd that day. और किसी कारण एक शिष्य प्रभु यीशु मसीह का उस झुंड में नहीं था। His name was Thomas. उसका नाम थोमा था। No doubting Thomas, just Thomas. उसका नाम शक करने वाला थोमा नहीं, लेकिन केवल थोमा। Maybe where was he, shopping or fishing? I don't know. मुझे नहीं पता कि वो बाजार में था या वो मछली पकड़ रहा था। But when he came back, लेकिन जब वो वापस the आया, disciples told him, the other disciples told him, we have seen the Lord. तो जो दूसरे शिष्य थे उन्होंने बोला हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा। Mary Magdalene must have also told him, I have seen the Lord with my own eyes. I have touched him. और मरियम मगदलीनी ने भी उसको बताया होगा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है और उसे छुआ भी है। But Thomas, being Thomas, said, I am not going to believe. And he uses a special phrase called, unless I touch the wound in the side of Jesus' body and put my fingers in the arms that were pierced, these hands that were pierced. लेकिन जब थोमा को बताया गया तो उसने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के पसली में अपना हाथ ना डालूं या उसके छिदे हुए हाथ में अपनी उंगली ना लगाऊं, तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। Imagine how Jesus must have felt when he heard about those words. और आप कल्पना करें कि प्रभु यीशु मसीह को कैसा महसूस हुआ होगा जब उन्होंने थोमा के इन शब्दों को सुना था। But this was very encouraging to me to read from the Gospel according to John, chapter 20, and verses 19 to 29. पर जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो मेरे को बड़ा उत्साह मिला इस वचन से जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 से 20 में। Shall we read from 19 to 29? These are 2 or 3 slides. Each one may please read one slide. कोई मेहरबानी से पढ़ने में मदद करे ये 2 स्लाइड को। Amen. May the Lord bless the reading and hearing of His word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। The first thing that we notice in this scripture, पहली बात जो हम इस पवित्र शास्त्र में यहाँ देखते हैं, Thomas was very, very human. Thomas was very honest. और थोमा जो था प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बहुत ही मानवीय था और बहुत ही ईमानदार था। He brought all his doubts, all his unlesses to the table. वो अपने सारे शक और जो भी उसके सवाल थे, जैसा जब भी वो सामने लेकर आया। There were 11 other disciples, the apostles, and many women and other disciples that were there, and everybody was telling Thomas, "We have seen the Lord." और जितने वहाँ पे शिष्य थे, बाकी शिष्य और दूसरी महिलाएं थी, उन्होंने जबकि बोला कि हमने प्रभु को देखा है। But notice the word that Thomas uses here. पर आप इस शब्द पर ध्यान दें जो थोमा यहाँ इस्तेमाल करते हैं, Unless I see, I will not believe. जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं,
तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। It's remarkably honest word from Thomas. और ये बहुत ही ईमानदार शब्द हैं जो तोमा के मुंह से निकलते हैं। It is not the word of someone who has given up everything on resurrection. और ये एक ऐसे जन के मुंह से नहीं निकल रहा जिसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ अब त्याग दिया पुनरुत्थान के दिन। It is not cynicism, it is not the contempt for those who were claiming that they have seen the Lord. और ये उनके लिए कोई दोष की बात भी नहीं थी जो वो कह रहे हैं कि हमने प्रभु को देखा है। It is someone who still wants to believe, और ये एक ऐसा जन है जो अभी भी विश्वास करना चाहता but है, he needs a reason to believe. लेकिन उसको एक कारण चाहिए विश्वास के लिए। He needs evidence for his faith. उसको एक सबूत चाहिए अपने विश्वास के लिए। So Thomas was not closing the door to believe. और यहाँ हम देखते हैं कि थोमा जो है वो विश्वास करने के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं कर रहा है। He was not saying that no, it cannot happen. I do not believe that the resurrection can happen or that Jesus had risen. और वो इस पर भी शक नहीं कर रहा कि मैं ये नहीं विश्वास करता हूँ कि यीशु नहीं जी उठे। But Thomas is simply saying that unless I see it, I will never believe. बस वो एक साधारण सी बात कह रहा है कि जब तक मैं खुद ना देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। Unless I walk through it. जब तक मैं उस पे चलूं ना, Unless I see with my own eyes. जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं। He was naming the condition that would lead him to faith. और वो ऐसी परिस्थिति के को सामने ला रहा था जो उसको विश्वास में आगे बढ़ा सकती। Many of us, my dear friends, carry an unless in our lives. और मेरे मित्रों, हम में से कई लोग अपने जीवन में ऐसे शब्द को जब तक अपने जीवन में लिए चलते हैं। Many of us have never spoken those unlesses to the Lord or in public. और हम में से कई लोगों ने समाज में लोगों के बीच में ऐसे शब्द को जो कि क्या कहा जाता है जब तक का इस्तेमाल नहीं किया। Maybe you are carrying those unlesses in your life that you have never spoken. हो सकता है आप ऐसे शब्द जब तक को लेकर चल रहे हैं जो आपने कभी नहीं बोले। Maybe you're thinking, unless God explain why this happened to me, why this happened to my family. और हो सकता है आप ये भी सोच रहे हैं जब तक ये मेरे साथ ऐसा नहीं होगा या मेरे परिवार के साथ ऐसा नहीं होगा। Or unless I reconcile this theological position, I am not going to believe the other person. और जब तक मैं अपने थियोलॉजी में इस बात को नहीं मानूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। Unless I really go through these things in my life, I am not going to believe the reasons presented to me or the evidence presented to me. और जब तक मैं स्वयं इस बात में को ना देख लूं तब तक मैं इन सबूतों पर भी विश्वास नहीं करूंगा। Some of us carry these unlesses, these questions, these doubts in our lives without ever voicing them. और हम में से कई लोग ऐसे शब्द को, सवालों को जब तक जो है अपने चुपचाप ना रह पाए। Because we sometimes think if we voice these concerns, these unlesses, और हम में से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यदि हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जैसे जब तक, people will think that we have lost our faith. तो लोग ऐसा सोचेंगे कि हमने अपना विश्वास खो दिया। We think ourselves that we may have lost our faith. और हम भी अपने आप में ऐसा सोच सकते हैं कि शायद हमने अपना विश्वास खो दिया। So we put up a facade, we pretend, we give a picture to the world that yes, we are believers. तो हम एक ऐसा दिखावा करने लगते हैं ताकि दुनिया हमको देखकर बोले कि हाँ हम विश्वासी हैं। But in the inside we shut ourselves behind closed doors. लेकिन अंदरूनी तरीके से हम अपने आप को जैसे एक बंद दरवाजे में, बंद कमरे में रख देते हैं। Thomas did not shut himself behind closed doors of doubt or suspicion. और थोमा जो है वो अपने आप को बंद नहीं करता अपना सवालों के मध्य में या जो भी उसके जीवन में सोच चल रहा है। But he says it clearly and loudly. लेकिन बड़े जोर से और स्पष्ट रीति से वो इस सवाल को करता है। So friends, we have to bring our unlesses to the Lord honestly.
इसलिए मेरे मित्रों, हम सबको बड़ी ईमानदारी से अपने सवाल को जब तक हमारे जीवन में इस्तेमाल करना Because चाहिए, what Thomas is teaching us here, क्योंकि जो थोमा हमें यहाँ सिखा रहे हैं, Jesus can still work with our honesty but not with pretense. दिखावे के साथ नहीं, परंतु ईमानदारी के साथ। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे जीवन में जो हम ईमानदारी के साथ आते हैं, ना कि दिखावे के साथ, प्रभु हमारे जीवन में काम कर सकते हैं। So don't let your doubts, your questions and your shame keep you behind closed doors. और कभी भी आप अपने शक को, अपना जो भी आपके सवाल है, उसको बंद कमरे में, बंद दरवाजे में ना रखें। Name it what is your struggle and God is going to work with your honesty. और जो भी आपका परेशानी है, उसका आप नाम लेकर प्रभु के सामने लाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे ईमानदारी को पसंद करता है। Doubting is not sin. Your doubts are not sinful. और शक करना पाप नहीं है, और आप ये आपके लिए कोई पाप में बने रहने की बात नहीं है। It is rather the stepping stone to a greater and deeper faith. लेकिन ऐसा करने से आप और ज्यादा गहरे विश्वास में जा सकते हैं यदि आप दिखावा ना करें, As we shall see today in a moment. जैसा हम कुछ क्षण में देखेंगे अभी। Secondly, what encourages me, और दूसरी बात जो मुझे प्रोत्साहित करती है, that Jesus comes back कि प्रभु यीशु मसीह वापस आते हैं to the same room उसी कमरे में where the other disciples were hiding. जहाँ पर दूसरे शिष्य छुपे हुए थे, About a week later. कम से कम एक हफ्ते के बाद। But he does not come to scold Thomas, to ridicule him for his doubts or questions. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वापस आते हैं तो वो इसलिए नहीं आते कि जो तोमा का सवाल है उसके लिए उसको डांटे, But he comes to give him a personal encounter. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आते हैं कि उसके साथ एक वो व्यक्तिगत मुलाकात करें। Not with a lecture to Thomas how you should have faith and how you should have believed the testimony of others. और प्रभु यीशु मसीह उसको लेक्चर नहीं देते कि तुम्हें जो दूसरों ने गवाही दी है उसको उस पर विश्वास करना चाहिए, Not to show his disappointment in Thomas. और वो अपना दुख भी जो उसमें नहीं दिखाना मांगते थोमा को, But he wanted to actually present to Thomas what he had voiced in his words. लेकिन प्रभु यीशु मसीह थोमा को वो दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने वचन में कहा। In John chapter 20 verses 26 and 27, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 और 26-27 में लिखा है, 8 days later, 8 दिन के बाद that is Jesus' disciples were inside again, यीशु के चेले फिर से उस घर के भीतर थे, and now Thomas was with them. और अब थोमा उनके साथ था। Although the doors were locked, और जबकि द्वार बंद थे, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you, Shalom." और तब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ खड़े हुए और बोले, तुम्हें शांति मिले, शालोम मिले। And he must have looked at Thomas particularly. और उन्होंने बड़े ध्यान पूर्वक खास तौर से थोमा को देखा होगा। You can imagine Thomas's predicament at this moment. और आप सोच सकते हैं कि थोमा के दिमाग में क्या चल रहा होगा। What is Jesus going to do with me now? अब प्रभु मेरे साथ क्या करने वाले हैं? Ayyo, I have told all these things. Jesus knows every one of them, what I said. और वो अपने दिमाग में सोच रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को तो सब कुछ मालूम है जो मैंने बोला। But I believe Jesus must have removed his robes. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चोगे को दिखाया होगा खोलकर। He invited Thomas. उन्होंने थोमा को आमंत्रित किया and said specifically, और बड़े स्पष्ट रीति से बोला, put your finger here. अपनी उंगली को यहाँ लगा। Put your fingers here and see my hands. और अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। Put out your hand. Put out, reach out with your hand and place it in my side. अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। Do not disbelieve but believe. अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बन। So he repeated word by word Thomas's conditions to Thomas. और जो कुछ भी थोमा ने कहा था उन्हीं शब्दों को एक एक करके प्रभु यीशु मसीह ने दोहराकर थोमा से बोला।
without sarcasm, without scorn, without ridicule, he immediately ministered to him by wording back to him everything that he had ever asked from Jesus. और प्रभु यीशु मसीह ने कोई डांट झटकार के साथ नहीं, गुस्से के साथ नहीं, लेकिन उसकी उन शब्दों को जो उसने स्वयं मुंह से निकाले थे उन्हीं को दोहराकर थोमा से बातचीत करी. Rather than dismissing his conditions as spiritually immature, बजाय इसके कि जो भी थोमा ने कहा था उसको इमेच्योर समझकर दूर करने के द्वारा Jesus honored his doubts and conditions, his unlesses. प्रभु यीशु मसीह ने उसके जो शब्द थे उसको ऑनर किया और जब जो उसने इस्तेमाल किया था जब तक उसका प्रभु यीशु मसीह ने ध्यान किया. Jesus said, "Here it is. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ ये है, Whatever you had asked for, जो भी तूने मांगा था, and I want you और मैं चाहता हूँ not to be disbelieving, कि मैं चाहता हूँ कि तू अविश्वासी नहीं but believe." लेकिन विश्वासी हो जा. This tells us, my dear friends, मेरे मित्रों ये हमें बताता है something deeper about the character of our God. एक बहुत ही गहरा प्रभु यीशु परमेश्वर के चरित्र के विषय में. He is a God who doesn't want blind obedience from any of us. एक ऐसा परमेश्वर है हमारा जो हमसे एक अंध भक्ति या अंधेरेपन का भक्ति नहीं चाहता. I wonder, why did Jesus have to really live on this earth after his resurrection for 40 days? और कभी कभी मैं ये अचंबा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन तक इस पृथ्वी पर अपने जी उठने के बाद क्यों रहना पड़ा. For this very reason, केवल इसी कारण के that he लिए is not a God of distance, कि ये परमेश्वर जो है ये बहुत ही दूरी वाला who परमेश्वर नहीं wants है to keep a safe distance from his creatures' humanity. जो अपनी सृष्टि से ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना मांगता, He दूरी is नहीं रखना not मांगता. threatened by our questions and our doubts and our conditions. और हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से, हमारी शर्तों से, हमारे सवालों से, हमारे शकों से दूर नहीं भागता. He is not offended by your conditions and your need for evidence. और हम जो सबूत की जो जरूरत मांगते हैं परमेश्वर से उससे ऑफेंड भी नहीं होता. He is rather a God who draws near to the doubting. Hallelujah. He comes to those who have conditions and look for evidences. लेकिन हमारा परमेश्वर तो और करीब आता है जब हम सवाल करते हैं, जब अपने शक को, अपने सवालों को, अपने जब तक को उसके सामने लाते He हैं. comes to those who are struggling in their faith like Thomas. और परमेश्वर उनके करीब आता है जो संघर्ष कर रहे हैं थोमा की तरह. He आज. comes to those because of faith whose hearts may be heartbroken. और परमेश्वर उनके करीब भी आता है जिनके हृदय इस वक्त टूटे हुए हैं. He draws near to those who are struggling with questions and unlessnesses in their lives, and he presents them what their conditions might be. और परमेश्वर उनके करीब आता है जब ईमानदारी के साथ वो अपने जब तक सवालों को परमेश्वर के पास लाता है, उनसे प्रार्थना करता है. The risen Lord, the Lord of the universe, जो जी उठा परमेश्वर है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का the परमेश्वर one है, who has conquered death, जिसने मृत्यु पर विजय पाई है, he stoops down to Thomas and shows him his nail-pierced hand and asks him to believe. वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस थोमा के पास आता है उसके सामने और उसको अपने पंजे और अपने हाथों को दिखाता है ताकि वो विश्वास करे. He did not demand Thomas to rise above because he has been to his seminary for 3.5 years or so. और प्रभु यीशु मसीह थोमा से ऐसी बात भी नहीं करते कि तुमने मेरे साथ शिक्षा ली इसलिए तुम उससे ऊपर उठो. अब You should be knowing all of this. I have taught you. I have shown you the miracles. I have taught you that I will rise up again after death. और तुम्हें तो ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए क्योंकि मैंने दिखाई और बोली और ये भी कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा. No, before extending his grace, Jesus does not bring these conditions or these ridiculous questions. और परमेश्वर अपने अनुग्रह को उसको देने से पहले इस सवालों के लिए उसको डांट नहीं लगाते. He extended his grace and his hands and his mercy to Thomas first before he said anything else to him.
और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह कुछ उससे बोलते, उन्होंने अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा उस पर दिखाई and pleaded with him to be believing. और उससे आग्रह किया कि तुम विश्वासी बनो। And then we see, friends, और फिर हम देखते हैं मित्रों, Thomas, who moved from evidence to an encounter with the Lord Jesus Christ. और फिर हम देखते हैं थोमा एक सबूत से बढ़कर अब वो परमेश्वर से मुलाकात, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात में बढ़ता है। Thomas has only asked for evidence. और थोमा ने केवल सबूत मांगा था। Jesus gave him a personal encounter and appearance. और प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक व्यक्तिगत मुलाकात उससे करी और अपने आप को प्रकट किया। He could examine the wounds clinically if Thomas wanted so. और यदि थोमा चाहता तो वो उसके जो घाव थे उसको देख सकता That था। was his plan. ये तो शायद उसका प्लान होगा, But योजना that's होगी। not what happened when an encounter happened with Jesus Christ, the living Lord. पर ऐसा नहीं होता जब प्रभु यीशु मसीह से जो जीवित है उनके साथ जब मुलाकात होती है। The text of John's Gospel does not say anywhere that Thomas literally reached out and put his finger in Jesus' wounds. It doesn't say that. और पवित्र शास्त्र में यूहन्ना प्रेरित ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि वास्तव में थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के पंजर को या उसके हाथों को नहीं छुआ। The conditions, the doubts, the questions that he has so carefully articulated that he would do and he would need, और जो भी सवाल, जो भी शक, जो भी सवाल उसने किए थे, जो उसको करने थे सबूत के लिए, they all dissolved in the presence of the mighty Lord who Hallelujah. was standing there before him. ऐसे सारे सवाल और शक एक तरह से जैसे घुल गए जब उसने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात उसकी हुई। See, people may have intellectual skepticism, they may have everything, but when they encounter the Lord personally, they will receive grace from the Lord Jesus Christ. आमीन। लेकिन जितने लोग अपने आप को विद्वान और जितने लोग बहुत ज्ञानी हैं, उनका ज्ञान उस समय बिल्कुल धीमा कम पड़ जाता है जब उनकी व्यक्तिगत मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाती है। This has happened in the history of the world time and time and time again. और ये इतिहास में ऐसा होता आया है, बार बार हम देखते हैं। Emperors, powerful people, rich people, wealthy people, scientists, intellectuals, philosophers, and the ordinary person on the street, when they encountered the Lord personally, everything melted before that encounter. आमीन। और जितने सम्राट हुए हैं, जितने राजा हुए हैं, जितने अधिकारी हुए हैं, राजनीतिक लोग हुए हैं, साधारण लोग हुए हैं, जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु से मुलाकात करी, उनकी सारी धारणाएं जैसे घुल गईं। Not because their questions are answered, इसलिए नहीं कि उनके सारे सवालों का जवाब मिल but गया, because something greater than their questions was standing right before them. आमीन। लेकिन सब कुछ जो उनके सवालों से बड़ा है वो स्वयं उनके सामने खड़ा है। So Thomas did not leave that room with a slightly updated set of questions or standards of belief. और जब थोमा का प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो उसका जैसे विश्वास जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गया। He left having met the Lord, the risen Lord, with his own eyes. उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा जो जी उठा है। And that's why, friends, इसलिए मेरे मित्रों, he in this passage, John in this passage tells us इसलिए हम देखते हैं कि यूहन्ना इस हिस्से में जो हमारे सामने पढ़ा गया उसमें ये कहता है that when Jesus asked him to put his finger in there and see his hands and put your hand and place it in my side, और जब प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा अपनी उंगली लाकर मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, Jesus still bears the marks of his wounds in his resurrection body. और प्रभु यीशु मसीह से दिखाना चाहते हैं कि अभी भी वो अपने जी उठे हुए पुनरुत्थित शरीर में भी वो अपने उन घाव के हिस्सों को दिखाई देते हैं। Jesus did not appear to his disciples और प्रभु यीशु मसीह यूं ही अपने चेलों के सामने नहीं आ गए that left the cross behind.
जिसमें क्रूस को पीछे छोड़ दिया गया, that left the wounds and scars of the cross behind him. जिसमें सारे घाव और जो उसके निशान है वो पीछे छोड़ दिए हैं। But he bore the marks of those wounds in his hands and in his sides, in his body, the resurrected body. आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद भी उन घाव को, उन निशानों को अपने साथ लिए रहे। The scars were still there. घाव के जो निशान थे वो अभी भी वहां थे। I believe after 2000 years, Jesus' scars are still there with him, reminding him of what he has done for this humanity. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी प्रभु यीशु मसीह के शरीर में इस प्रकार के घाव के निशान है, ये दिखाने के लिए कि वो भी मनुष्य हैं। The risen Lord Jesus Christ और जी उठे प्रभु यीशु मसीह is not a new Jesus ये एक नए यीशु नहीं होगा who is different and indifferent to the sufferings of people. जो कि फर्क हो गए या लोगों की जो परेशानी में है उनके प्रति किसी प्रकार का ध्यान नहीं Just रखते, because he is passed on to glory इसलिए कि वो केवल महिमा में चले गए doesn't mean he doesn't know suffering. इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें लोगों की परेशानी दुख नहीं मालूम, Doesn't mean he's indifferent to our pain and our sufferings and our scars. और ये इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दुख मुसीबत से बिल्कुल अनभिज्ञ है। He is the same Jesus who suffered on the cross and before the cross. और ये वही यीशु है जो क्रूस पर हमारे लिए मारे And it गए is forever woven into his body. He bears the scars of the suffering in his body, even in his resurrected body today. और आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थित शरीर में इन घाव के निशानों को लिए रहते हैं हमारे लिए। Therefore, it means for us today, इसलिए हमारे लिए इसका अर्थ ये है when you bring your pain, कि जब आप अपने दर्द को लेकर your आएंगे, sicknesses, अपने बीमारी को your painful experiences, और अपने अनुभव को जो बहुत ही दर्दनाक है, your questions, आपके सवाल, your brokenness, आपका टूटापन, your conditions, आपकी परिस्थिति, your lack of faith, आपका विश्वास की your कमी skepticism, और आपका सोचना कर पाना, it doesn't bother the Lord Jesus Christ even a bit. इससे प्रभु यीशु मसीह को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। He doesn't keep himself standing at a safe distance from you or your conditions. प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थिति से अपने आप को दूर नहीं कर लेते। No, he has redeemed all of those things for us and he will welcome those friends. मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इन सब बातों से छुटकारा दिया है और हमें वो अभी आज भी हमारा स्वागत करते हैं। Even though he is now glorified, आज भी जबकि वो महिमा में है, those wounds in his body, those scars in his body ये जो घाव के निशान उनके शरीर में है, are a testimony forever ये हमेशा के लिए एक गवाही है that nothing that you carry is beyond his reach, beyond his Amen. grace. कि जो कुछ भी जिससे भी आप होकर गुजर रहे हैं वो परमेश्वर की रीच से बाहर नहीं है। And lastly we see, और आखिरी बात जो हम देखते हैं so as Jesus presented him the encounter and the wounds, कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस मुलाकात के मध्य में अपने घावों को दिखाया, Thomas answered, थोमा ने जवाब दिया, my Lord and my God. He must have felt at his feet, worshipping him. And these words, my dear friends, are very, very crucial. और थोमा ने प्रभु यीशु मसीह से उनकी बातें सुनकर बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वो शायद उनके कदमों पे गिर भी गए होंगे। His doubt built in him a confession that is the supreme confession of faith. और उसका जो शक था उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के सामने अब वो अपने विश्वास में बढ़ गए, मेरे प्रभु कहकर। This is actually the theological summit of the Gospel of John, what John was trying to write in this Gospel for us. It is the highest. और ये सबसे उच्च विवरण जो यूहन्ना अपने सुसमाचार में देना चाह रहे हैं वो उन्होंने बताया यहाँ पर। Remember how John started his gospel? आपको याद है यूहन्ना ने इस सुसमाचार को कैसे शुरू In the किया? beginning was the Word. आदि में वचन था, And the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ And था। now in his ending the gospel, और अब वो सुसमाचार का खात्मा कर रहे हैं through Thomas's words, थोमा के शब्दों में John is saying to us that this Jesus that I was presenting to you
is indeed the Lord and God. और यूहन्ना इस विवरण के द्वारा हमें बता रहे हैं यही यीशु जो है ये मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है। Not just the Lord, न केवल प्रभु, not a God, केवल एक परमेश्वर नहीं, my Lord मेरा प्रभु and my God. और मेरा The परमेश्वर। same word that was used for Yahweh God by the Jewish people. ये वही शब्द है जो यहोवा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते थे यहूदी लोग। Jewish Thomas had no problem in using the same words for the risen Lord Jesus Christ. और तोमा के लिए कोई मुश्किल शब्द नहीं था ये बोलना अब जीवित प्रभु यीशु मसीह के लिए हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। So whenever the humanity looks at Jesus Christ, इसलिए जब कभी भी जब मानवता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकती when है, they encounter the risen Lord Jesus Christ, जब उनकी मुलाकात होती है प्रभु यीशु मसीह से, this is what John wants everybody to say and confess, that he is indeed our Lord and our God. आमीन। तो यही है जो यूहन्ना प्रेरित हमको आज बताना चाहते हैं कि वही वास्तव में हमारे प्रभु है, मेरे प्रभु है और मेरे परमेश्वर है। The one who doubted most loudly और एक ऐसा शख्स जिसने सबसे ज्यादा जोर से शक किया था, became the one who confessed most fully and in a most superlative manner. यही ऐसा शख्स बन गया जिसने सबसे ज्यादा जोर से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु, अपना परमेश्वर माना। Now Jesus turns to the other people. अब प्रभु यीशु मसीह दूसरे चेलों की तरफ मुंह करते हैं। In chapter 20 and verse 29, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 और 29 में Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, have you believed because you have seen me? क्या तूने मुझ पर विश्वास किया क्योंकि तूने मुझे देखा है? It's not an accusation. ये किसी प्रकार की डांट फटकार But नहीं है। listen to what Jesus says after that. लेकिन आप ध्यान से देखें प्रभु यीशु मसीह उसके आगे क्या बोलते हैं। Blessed are those who have not seen and yet have believed. धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। Jesus was addressing in this verse everyone who would believe the Lord Jesus Christ, including you and me today. आमीन। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहने के द्वारा मुझे और आपको भी इसमें सम्मिलित कर रहे हैं जो आज इस बात को सुनते It हैं। is not a rebuke to Thomas. ये किसी प्रकार की डांट नहीं है थोमा के लिए, Rather, it is a promise to us. बल्कि ये एक हमारे लिए एक प्रॉमिस है। Those who have not seen the risen Lord Jesus Christ physically, जिन्होंने शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, Jesus pronounced this blessing, this beatitude Amen. for them. He put your name in it. He put my name in it. Everyone who believes in the Lord Jesus Amen. Christ in this way are blessed people. प्रभु यीशु मसीह एक धन्यता बता रहे हैं हर एक उस जन के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, कि जो बिना देखे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे धन्य हैं। It is a blessing pronounced over you, my friend. मेरे मित्रों, ये आपके ऊपर एक आशीष बोली गई है। You who may not have touched the hands of the Lord Jesus Christ or put your finger in his side. आप जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में या पंजर में उंगली ना डाली हो, And yet you have believed. तब भी आपने विश्वास किया है। Jesus says that you are among his blessed people. तो यीशु कहते हैं कि आप उनके लोगों के बीच में हैं जो धन्य हैं। So my dear friends, इसलिए मेरे don't मित्रों, let unless your doubts, your shame, or your questions, or your conditions keep you locked in the room. इसलिए मेरे मित्रों, अपने शकों को, अपने सवालों को, जो भी आप जिससे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो आपको कमरे में बंद ना रखे और सवालों से पीछे ना रखे। Pray and bring them to the risen Lord. प्रार्थना करें और उनको प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है उनके सामने लेकर आएं। And as he met Thomas, और जैसे उनकी मुलाकात थोमा से हुई, as he has met millions of people in the last 2000 years or so, और जैसे पिछले 2000 वर्षों से और ज्यादा वो लोगों से मुलाकात करते आए हैं, he will meet you where you are. He will stoop down to you, to wherever condition, Amen. whichever condition he may find you, and extend his grace to you.
प्रभु यीशु मसीह जहां भी आप हैं, जिस भी परिस्थिति में है, वो आपके करीब आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे जहां भी आप हैं, so that you who find His grace, ताकि जब वो आपके ऊपर अपना अनुग्रह दिखाएं, तो जब आप उसे पाते हैं, you may also confess Jesus as your Lord and your God. आमीन, तब आप भी ऐसा अंगीकार अपने जीवन में करने पाए, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। Let's pray. आइए प्रार्थना Father, करें। we